So guys, this is me, Mr. S. Jom, right now giving the update regarding media briefing. So today, that's August 11, 2026, in Itanagar, on a BJP office. The Bharatiya Janata Party, that's BJP in South Arunachal Pradesh, on Monday held a press conference at its state headquarters in Itanagar, where State Vice President Ashok Sangchuju criticized Congress leader Rahul Gandhi over what he described as repeated disruptions of parliament, changing demands, and misleading political narratives. Addressing the media, Mr. Sangchuju alleged that Rahul Gandhi has undermined the dignity and decorum of parliament by repeatedly disrupting proceedings instead of engaging in constructive democratic debate. He claimed that the Congress leader had initially sought the resignation of the Union Education Minister and later demanded a discussion on the NEET issue in Parliament. According to Sangchuju, after the government agreed to a comprehensive discussion and took measures to strengthen legislation against examination paper leaks, the opposition raised another issue concerning remarks made by Union Home Minister Amit Shah during the Jantar Mantar protest. So the government has made it clear from the very beginning that it is ready to discuss every issue and answer every question, Sangchuju said, adding that Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju also stated that the Home Minister was prepared to respond in Parliament. Sangchuju cautioned why Rahul Gandhi was allegedly changing his demands and urged him to bring his questions before Parliament rather than making allegations outside the House. He further accused the Congress of practicing selective politics over student protests, alleging that Congress leaders raise student issue when politically convenient while remaining silent, when similar protests face police action in states governed by the Congress or its allies. Referring to reported police action against protesting students in Jharkhand, Sangchuju said allegations involving barricading, tear gas, water cannons, and alleged mistreatment of women protesters should be independently examined and that accountability should follow if wrongdoing is established. Calling for Rahul Gandhi to substantiate his allegations with facts, Sangchuju said political issues should be addressed through appropriate democratic forms and warned against statements that could, according to him, mislead the public. Rahul Gandhi, the Honorable Home Minister, is ready to answer every simple questions. Come to Parliament, raise your questions and face the answers. Do not run away from the discussion, Sangchuju said. The press conference. So guys, regarding this statement made by Mr. Sangchuju, there was a press briefing, and regarding this press briefing, let me show you a glimpse of the footage of it. सभी मीडिया बंधुगण को नमस्कार। जैसे कि हमारा मीडिया इंचार्ज तोलंग ताको जी ने कहा है कि आज हम किस विषय को यहाँ लेकर के आ रहे हैं, आप सभी को बता दिया है। पिछले 15 दिनों से आप सभी ने भी देख रहा होगा कि भारत का जो संसद में किस तरह का माहौल है। आज राहुल गांधी जी ने संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार तार कर दिया है। राहुल गांधी देश में अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय का प्रतीक बन गया, आप सब देख रहा होगा। पिछले 15 दिनों में उन्होंने देश के लोगों को झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर पार्लियामेंट को यानी कि संसद को हाईजैक किया और हर एक दिन उनका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से हर एक दिन उनका स्टेटमेंट जो चेंज करते जा रहा है दिन बे दिन, वो आप सब देख रहा होगा। पहले उन्होंने कहा कि
शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। फिर कहा सदन में नीट पर चर्चा होना चाहिए। सरकार ने केवल चर्चा ही नहीं बल्कि नीट का ऊपर इतना सख्त कानून बनाया, आप सभी को पता है। सरकार ने इतना जोर शोर से कानून लेकर के आया, जो लोग पेपर लीकेज में, गड़बड़ी में जो लोग इन्वॉल्वमेंट होगा उसका ऊपर 10 साल का सजा और 10 करोड़ का जुर्माना का एक कानून, इतना बड़ा कानून लेकर के आया। फिर ये कानून लेकर के आने के बाद में फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। फिर कहता है कि जंतर मंतर में जो धरना के समय, प्रोटेस्ट के समय जो छात्र के साथ जो व्यवहार हुआ है उसका बारे में गृह मंत्री जी को संसद में बयान देना है, उन्होंने ये कहा। और जबकि सरकार ने डे वन से कहा है कि विपक्ष और कांग्रेस कम से कम संसद तो चलने दे, हम हर एक विषय पर चर्चा करने का तैयार है, हर एक सवाल का जवाब देने का तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने संसद चलने नहीं दिया। आप सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट रूप से बताया और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू ने स्पष्ट रूप से बताया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी ने फिर अपना गोल पोस्ट चेंज कर देता है। तो इसलिए आप सभी देखा होगा, कल राहुल गांधी ने एक प्रेस ब्रीफिंग किया, प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा और झूठ फैलाकर कहा कि अगर उन्होंने कहा कि चर्चा चाहिए उनको, तो चर्चा के लिए अमित शाह जी तैयार है और वो नहीं चाहता है कि चर्चा हो। और अगर सरकार चर्चा करे और जवाब दिया तो राहुल गांधी का झूठ और भ्रम का हर जल जो है तहस नहस हो जाएगा, इसलिए वो चर्चा से भाग रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी हर एक सवाल पर चर्चा करने का तैयार है, जवाब देने का तैयार है। अब चर्चा से ना भागे और आप चर्चा से डरे मत। और आप सभी ने देख रहा होगा, जब जंतर मंतर में जब छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ उस समय राहुल गांधी जी ने क्या क्या एक्टिविटीज किया है एक्टिवली, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब अभी झारखंड में उनका जो सहयोगी सरकार, उनका जो मिलीभगत सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका जो अलायंस सरकार, वहाँ छात्रों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। आप सभी ने भी देखा होगा, कल इतना लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैन उन पर चलाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले उन पर चलाया जा रहा है। और सबसे ताजुब की बात है कि जो बैरिकेड बनाया, आप लोगों ने देखा होगा, बारबेड वायर का जो कांटिले तार का जो बनाया, क्या स्टूडेंट लोग टेररिस्ट है क्या? तो उस इतना जो अत्याचार स्टूडेंट के साथ हो रहा है, तो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता है और सुनाई नहीं देता है। तो वो किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं आप सब ने भी देखा होगा, देश के लोगों ने भी देखा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी के इशारा पर हो रहा है। और मैं राहुल गांधी से कहूँगा कि आप उस पर जवाब दें। और मैं राहुल गांधी से कहना चाहूँगा कि आप छात्रों के नाम पर देश को गुमराह करने और सुविधा की राजनीति के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे।